Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today we are doing chapter number 4 quadratic equation exercise 4.2. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. Part first is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. We have to find the roots of this equation. How to find the roots? We need two numbers such that whose multiplication is minus 10 and after adding we get minus 3. Find the numbers. So numbers are 5 and 2. 5 into 2 is 10 and 5 minus 2 is 3. So we get x square minus 5x plus 2x minus 10 इज इक्वल टू 0. हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म को एच टी लिखते हैं. ये जो मिडल टर्म है इसकी जगह पे आपका आ गया माइनस 5x प्लस 2x. क्लियर है. नेक्स्ट वन, यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है. एक्स स्क्र माइनस 5x में से x इज़ कॉमन. वी गेट x माइनस 5. ये x आपका कॉमन हो गया. प्लस यहाँ से 2 और 10 में से 2 कॉमन. x माइनस 2 इंटू 5 इज 10 विच इज इक्वल टू 0. We get x plus 2 and x minus 5 is equal to 0. So to find the roots, put x plus 2 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0 and x minus 5 is equal to 0. From this we get x is equal to minus 2 and x is equal to 5. Hence these are the roots of given equation. Hence x is equal to minus 2 and x is equal to 5 are roots of given equation. Is it clear? Okay, let's start next. Next part is 2x square plus x minus 6. In this part we have to find two numbers whose multiplication is 12 and after adding we get plus 1. So the numbers are 4 and 3. 4 into 3 is 12 and 4 minus 3 is 1. So we get 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Taking common we get 2x. After 2x common we get x plus 2 into 2 is 4 and from here we get 3 common, also minus. We get x minus minus become plus. 3 into 2 is 6 which is equal to 0 and x plus 2 is a factor and next is 2x minus 3 is equal to 0. So put x plus 2 is equal to 0, 2x minus 3 is equal to 0. From here we get x is equal to minus 2 and from here we get x is equal to 2x is equal to 3. Here x is equal to minus 2 and x is equal to 3 upon 2. So these are the roots of given equation. Hence x is equal to minus 2 and x is equal to 3 by 2 are roots of given equation. ये आपका था सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में हमें गिवन इक्वेशन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई आई थी आपकी 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. 5 इंटू 5 रूट 2 इंटू रूट 2 which is equal to 5 into root 2 square and this is 2 which is 5 into 2 is 10. तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 चाहिए यहाँ पे और ऐड करें तो 7.
तो मल्टीप्लाई आपकी आ जाएगी 5 इंटू 2 से, और 5 + 2 = 7. So we get √2x² plus 5x plus 2x plus 5 इंटू √2. तो सिर्फ मिडल टर्म की जगह पे लिखे जाएंगे जो आपने नंबर चूज़ किए हैं 5 और 2. बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम एज इट इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन, तो क्या बचेगा √2x प्लस 5. यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो बच्चे यहाँ पर 2 है जो, वो अभी अभी हमने देखा था जो 2 आता है वो √2 का स्केयर होता है, मतलब √2 इंटू √2 से 2 आता है आपका. तो इट मीन्स दैट यहाँ पर भी √2 है 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर एक √2 है, तो एक √2 कॉमन, यहाँ से एक √2 बचेगा और साथ में x प्लस ये √2 कॉमन, क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास ये सेम फैक्टर में से एक लिख लेंगे √2x प्लस 5, एंड नेक्स्ट वन इज x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. पुट √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 प्लस का उधर जाके -5, √2x इज इक्वल टू -5 and x is equal to -5 by √2. From here x is equal to plus √2 become -√2. Hence x is equal to -5 upon √2 and x is equal to -√2 are roots of given equation. So these are the roots of given equation. Okay, let's start next, which is 2x² minus x plus 1 by 8. In this part we have to given that 2x² minus x plus 1 by 8 is equal to 0. So taking LCM, which is 8, we get 2 into 8 is 16, 16x² minus 1 into 8 is 8x plus 8 divided with 8 is 1, 1 into 1 is 1 is equal to 0 by 1. Cross multiply. After cross multiply we get 16x² minus 8x plus 1 is equal to 8 into 0 is 0. So the given equation is 16x² minus 8x plus 1. We have to find two numbers whose multiplication is 16 and after adding we get 8. हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 16 आए और ऐड करें तो 8. 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 4 इज कॉमन, ऑल्सो x इज कॉमन. After dividing with 4x we get 4 into 4 16x² माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और x को x से करेंगे तो फिर भी 1. यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ले लेते हैं -1 कॉमन. -1 कॉमन से ये आपका हो जाएगा प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 विच इज़ इक्वल टू 0. तो आपके पास एक फैक्टर आ गया 4x - 1. इन दोनों में से एक चूज़ करते हैं 4x - 1. सेकेंड इज ऑल्सो सेम विच इज़ 4x - 1 इज इक्वल टू 0. पुट 4x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर इज ऑल्सो 4x - 1 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर वी गेट 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 by 4 and also from here we get 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4. Hence the roots of this equation is 1 by 4 and second one is also 1 by 4. Hence roots of given equation are x is equal to 1 by 4 and 1 by 4.
क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन इक्वेशन इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, 100 इंटू 1 इज 100, जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 100 है और उनको प्लस करें तो 20 माइनस 20, तो वो आपके नंबर आ जाएंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x. तो 20 की जगह पे हो जाएगा -10x माइनस 10x प्लस 1 एच डीज. तो यहाँ से 10 कॉमन, x इज़ ऑल्सो कॉमन. 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10, x² को x से करेंगे तो x माइनस 10x को 10x से करेंगे तो 1. और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लेते हैं. -1 से ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 और आपका x भी एच डीज. ये प्लस है ये माइनस है तो बिकम माइनस, 1 को 1 से करेंगे तो 1. तो आपके पास एक फैक्टर आ गया 10x माइनस 1 और दूसरा भी 10x माइनस 1. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10x माइनस 1 इज़ वन फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर इज 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. पुट 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 उधर जाके प्लस का और 10 इसके डिवाइड में. ऑल्सो फ्रॉम हेयर 10x minus 1 is equal to 0 and minus 1 become plus 1, x is equal to 1 by 10. These are the roots of given equation. Hence x is equal to 1 by 10 and 1 by 10 are roots of given equation. Okay, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके 5 पार्ट्स थे तो ये सभी पार्ट्स हमने कर लिए. तो कल करेंगे हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे.